गुड आफ्टरनून एवरीवन। जैसा कि आप देख रहे हैं ये क्लास 9th की 3 स्टूडेंट्स हैं और इधर सबसे लेफ्ट में है रोशनी कुमारी, दैन इन द सेंटर आराध्या किसले एंड ऑन द राइट साइड नंदिनी सिन्हा। So these 3 students are going to perform a simple experiment which is from the second chapter of the science. The topic of the chapter is given written on the board, that is scattering of light through different solution or mixture. तो आज ये तीनों स्टूडेंट्स एक एक्टिविटी परफॉर्म करेंगी जिसमें वो देखेंगी कि लाइट कैसे स्कैटर होता है अलग अलग तरह के मिक्सचर में। तो चलिए परफॉर्म करिए और साथ ही साथ एक्सप्लेन भी करते रहिए। Types of mixture. There are two types of mixture, homogeneous and heterogeneous. In homogeneous mixture, the particles of solute and solvent are equally mixed together. But in heterogeneous solution, the particles of solvent and solution are not equally mixed together. Sometimes it also settles down at the bottom. So first of all, we can understand the solution. Water with NaCl is known as solution. So what you have taken earlier in the beaker? Water. This is water. And you are adding soil. Soil or salt? Salt. Okay. Then we have to stir it or shake it so that the salt particle get dissolved inside in the water and it will make a true solution. We call salt in water a true solution because the particle of the salt gets intact between the intermolecular space of the water and we don't see any of the particle in the water. So it's a true solution. Now in the next beaker what you are going to do? Here we have milk. It is heterogeneous, but it shows like it is homogeneous. It appears like homogeneous, Yes. but actually it is heterogeneous. So adding water in the milk. Add little more water, a little bit. Okay. So the milk solution is ready, true solution is ready, and what about the third one? It is colloidal. This is colloidal. This is suspension. Here we have added water and sand. Okay, water and sand. And Now- we can see that the sand is settled down at the bottom. Okay, bring it near to the camera. Okay, yes, we can see at the bottom. Now, So let's start the activity. okay, For this activity, we need a laser light. show it in the direction just like here, left to right or right to left. For as you can see, the solution gets brighten up just like the laser light. It appears red. So here we can see that the light is scattering through a colloidal solution. हाँ, और जैसा कि आप देख रहे हैं मिल्क का अमाउंट ज़्यादा था, 1-2 ड्रॉप ही मिल्क यूज करते हैं अगर हम लोग वाटर में, और उसका इतना सोल्यूशन बनाते हैं तो ज़्यादा क्लियर लाइट दिखता है। बट ऑलरेडी 10 ml या 12 ml मिल्क था जो कि काफ़ी ज़्यादा अमाउंट है इस सोल्यूशन के मिक्सचर के अमाउंट के कंपैरिजन में। इस वजह से उतना ज़्यादा क्लियर स्कैटरिंग नहीं दिख रहा है, लेकिन जहाँ पर भी लाइट पड़ रहा है वहाँ पे रेड स्पॉट पड़ रहा है। दैट इज़ बिकॉज ऑफ द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द मिल्क पार्टिकल्स। अब यही लाइट अब आप पास करेंगे अदर सोल्यूशन से या मिक्सचर से। तो यहाँ पर So here we can see that the light is not scattering from a solution. ओके, हाँ, सोल्यूशन में से कोई भी लाइट स्कैटर होता हुआ नहीं दिख रहा है। तो ट्रू सोल्यूशन देख लिया। नाउ हाँ, यहाँ पर बहुत ही क्लियर कट दिख रहा है लाइट का पाथवे। लाइट का एक स्ट्रेट पाथ दिख रहा है लेजर लाइट का। वो पाथ इसलिए दिख रहा है क्योंकि सैंड के पार्टिकल जो है उसमें फ्लोट कर रहे हैं पानी में। दैट इज बिकॉज वी कैन सी द क्लियर पाथ ऑफ द लाइट विच इज ऑल्सो नॉन एज टिंडल इफेक्ट। दिख रहा है ना सभी को?
हाँ, मिल्क के केस में भी ऐसा ही दिखना चाहिए था, बट मिल्क का अमाउंट ज़्यादा है, दैट्स इसीलिए लाइट ज़्यादा आगे तक पहुंच नहीं पा रहा है। मिल्क बहुत ही कम लिया जाता है, 1 या 2 ड्रॉप्स, यहाँ तो 12 ml के आसपास था। तो आज का ये एक्सपेरिमेंट हमने कर दिया, और इससे आपने क्या सीखा बताइए। इससे हमने ये सीखा कि ये जो हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, जो कोलाइड है, उससे जो लाइट है वो इजीली स्कैटर कर रहा है। और ट्रू सोल्यूशन में क्यों स्कैटर करता हुआ नहीं दिख रहा है? क्योंकि जो सॉल्ट के पार्टिकल्स हैं वो वाटर के पार्टिकल्स के साथ मिक्स हो चुके हैं, इसलिए उसके कोई पार्टिकल्स बचे नहीं, तो वो नहीं बचे नहीं या मिक्स हो गए हैं वाटर में? तो कोई मतलब रिलीज हुआ, तो मिक्स हो गए तब तो लाइट से टकराने चाहिए ना, क्यों नहीं टकरा रहे हैं? क्योंकि वो जो वाटर के बीच में गैप होता है उनमें फेल हो गए हैं, हाँ, यानी एक्सट्रीमली स्मॉल साइज हो गया है, इतना छोटा हो गया है कि रेडिएशन से वो टकरा ही नहीं पा रहे हैं, इसलिए स्कैटरिंग नहीं हो रहा है। फिर इसमें बताइए सस्पेंशन, जिसमें सैंड आपने ऐड किया था, इसमें क्यों स्कैटरिंग इतना अच्छा दिख रहा है? बिकॉज इसके जो पार्टिकल्स हैं सैंड के, वो तो एकदम मतलब मिक्स ही नहीं हुए, क्योंकि जो तो मिक्स नहीं होंगे तो फिर तो आपने शुरू में दिखाया था कि उसके बॉटम पे सेटल डाउन हो जाते हैं, तो सब तो नीचे सेटल डाउन हो गए, तो ऊपर कैसे स्कैटरिंग हो रहा है? क्या पार्टिकल अभी भी ऊपर हैं? बिकॉज इसके पार्टिकल्स होते हैं वो काफ़ी बिग होते हैं। बिग पार्टिकल, हैवी पार्टिकल तो ज़्यादा डेंसिटी के होंगे, वो तो सेटल डाउन हो जाएंगे। तो सेटल डाउन होने के बाद तो फिर लाइट कौन स्कैटर कर रहा है? क्या और भी पार्टिकल है जिनको ज़्यादा समय लगेगा स्कैटरिंग में? यस सर। ओके, थैंक यू।